بتائیں کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے پر ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے ہیں۔ ڈرائیور اور مسافر دونوں مشکلات کا شکار ہیں۔ جلد احتجاج کا عندیہ دے دیا۔ رکشہ ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ جہاں پہلے 150 کرایہ لیتے تھے اب 200 لے رہے ہیں۔ کراچی سے لاڑکانہ تک کرائے میں 100 روپے کا اضافہ ہوا، 1500 روپے کر دیا گیا ہے۔ پیٹرولیم قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول، مہنگائی کا جن بے قابو۔ پیٹرول 35 روپے فی لیٹر بڑھا تو ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی اونچی اڑان بھرنے لگے۔ کراچی سے لاڑکانہ جانے والی بس کا کرایہ 100 روپے اضافے کے بعد 1500 روپے تک پہنچ گیا۔ ٹرانسپورٹرز کرایہ بڑھانے کی وضاحتیں دیتے ہوئے دہائیاں دینے لگے۔ بولے کرایہ بڑھنے پر سواریاں بھی کم ہو گئی ہیں۔ پہلے ہمارا چل رہا تھا 1400، ابھی ہم نے بڑھایا صرف 100 روپیہ، صرف 100 روپیہ بڑھا دیے کیونکہ اس وجہ سے کیونکہ ڈیزل ہمارا بڑھ گیا۔ پہلے آتا تھا ہمارا 60,000 کا ڈیزل، ابھی آ رہا ہے 90,000 کا، یہاں کہ لاکھ روپے کا خرچہ ہو گیا گاڑی کا۔ سواری کل سے آ ہی نہیں رہی ہمارے پاس، اسی وجہ سے کہ ڈر رہی ہے سواری کے کرایہ کہیں زیادہ مہنگا نہ ہو گیا، تو اسی وجہ سے کل بھی ہماری ایک ہی گاڑی گئی تھی، صرف 5 بندے لے گئے، اور آج صبح والا بھی ٹائم ڈراپ ہوا ہے اور ابھی تک کوئی سواری آنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ بس ٹرمینل سنسان، جبکہ بس مالکان کے چہروں پر پریشانی کے تاثرات نمایاں دکھائی دیے۔ ٹرانسپورٹرز نے جلد احتجاج کا عندیہ بھی دیا اور کہا کہ جلد فیصلے سے آگاہ کیا جائے گا۔ تمام ٹرانسپورٹر سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور آئندہ کی حکمت عملی ترتیب دیں گے۔ کیمرامین وقاص لودھی کے ساتھ محمد آصف، سٹی 21۔ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر تاجر برادری پریشان نظر آتی ہے۔ صدر آل سٹی طاہر اتحاد شرجیل گوپلانی کا کہنا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے کی بجائے مزید بوجھ ڈال رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ پیٹرول کی قیمتوں نے چھوا آسمان تو تاجر بھی ہو گئے حیران اور پریشان۔ اضافے کو حکومت کا ظالمانہ اقدام قرار دے دیا۔ صدر آل سٹی تاجر اتحاد شرجیل گوپلانی کا کہنا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے مہنگائی میں بے انتہا اضافہ ہوگا۔ ملک بھر میں ٹرانسپورٹ کرائے بھی بڑھ جائیں گے۔ 15% جو ہے پیٹرول کا جو ریٹ بڑھا ہے، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ عوام پہ اوپر آئے گا اور ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، کیونکہ ہر چیز ریلیٹ کرتی ہے آپ کی پیٹرول کے اوپر اور آپ کے ٹرانسپورٹ کے اوپر۔ چاہے سبزی آپ کی اگر آنی ہے وہ کھیتوں سے لے کے منڈیوں تک، اس میں ٹرانسپورٹ کا انوالومنٹ ہے، ہر آئٹم کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ تاجر رہنما شرجیل گوپلانی نے کہا کہ کراچی سے پنجاب جانے والی گاڑی کا کرایہ 1 لاکھ روپے تک بڑھے گا، جبکہ کے پی تک 1.25 لاکھ روپے تک کا اضافہ ہوگا۔ تمام اضافی بوجھ عوام پر منتقل ہوگا۔ تقریباً 500 روپے ٹن کے اوپر جو ہے آپ کا یہاں سے جو پنجاب جائے گا اس کا کم سے کم ڈفرینس آئے گا۔ 1 لاکھ روپے فی ٹرالر جو ہے وہ بڑھ جائے گا، جس میں ہمارا 42 سے 45 ٹن مال جاتا ہے۔ تو اب آپ یہ سوچ لیں کہ آگے جا کے کتنا مہنگائی بڑھے گی ہر چیز کے اوپر۔ اگر یہ کے پی کے جائے گا تو اس پہ 700 سے 800 روپے ٹن کا فرق پڑے گا، تو یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے جو کہ ہمارے کو مہنگائی کی صورت میں اب ہمارے سامنے آنا ہے۔ صدر آل سٹی تاجر اتحاد کا کہنا تھا کہ حکومت کو موجودہ حالات میں عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ رمضان میں مہنگائی بڑھنے کے خدشے کا اظہار بھی کر دیا۔ بولے رمضان قریب ہے، پیٹرول ڈیزل مہنگا ہونا رمضان میں مہنگائی کا سبب بنے گا۔ ابراہیم خان کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21۔ پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد مہنگائی کی نئی لہر نے جکڑ لیا ہے۔ شہر قائد میں سائیکلوں کے دام بھی بڑھ گئے ہیں۔ سہراب سائیکل 18,500 کی ہو گئی۔ کی اونچی اڑان اور بڑھتی ہوئی مہنگائی نے سائیکل مارکیٹ کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ سائیکل کے کاروبار سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ سائیکل قوت خرید سے باہر ہو گئی ہے۔ پیٹرول اور ڈالر کی وجہ سے 6 سے 7 ہزار تک قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ کہ پیٹرول کے ریٹ بڑھنے سے کافی حد تک جو نا سائیکل کے ریٹ انکریز ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو امپورٹڈ سائیکل تھی، پہلے بائی سائیکل یہ ڈالر کے ریٹ کی وجہ سے پہلے فرق آتا تھا تقریباً 1000 سے 1200 روپے کا، مگر اس بار جو ایسا ہوا ہے کہ لوکل اور امپورٹڈ سائیکل کے اندر کم و بیش 6-7 ہزار روپے کا فرق آیا ہے۔ دکاندار کہتے ہیں کہ مہنگائی کے باعث کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، مارکیٹ سنسان ہو گئی ہے۔ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ عوام ویسے ہی پریشان ہے، حکمرانوں کو سوچنا چاہیے۔ ملک پاکستان کے حالات آپ کے سامنے، ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ پاک جو ہے نا ملک پاکستان کی حفاظت کرے۔ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، غریب کے لیے مشکلات ہیں ساری۔ 3 ماہ کے دوران سہراب سائیکل 18.5، بی ایم ایکس 2000 اور ایم ٹی بی سائیکل کی قیمتوں میں 3 کا اضافہ ہوا ہے۔ کیمرامین ساجد کے ہمراہ کاوش میمن، سٹی 21۔ اور اب بات کرتے ہیں کراچی میں مہنگائی کی۔ مہنگائی کی لہر نے تیل اور گھی کی قیمتوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بری برانڈ کمپنیوں نے تیل اور گھی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔
वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं कि तालीमी बोर्ड्स के इम्तहानात का तरीक़ा कार तब्दील होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए टास्क फोर्स बनाया जा रहा है। वज़ीर तालीम ने असातिज़ा की तंजीमों का महकमे तालीम के अंदर सियासत का ज़िम्मेदार करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनेस्को की जानिब से सूबा सिंध के तालीमी निसाब और तारीख़ी विरसा पर तकरीब रखी गई, जिससे इटली के कौंसल जनरल, यूनेस्को के डायरेक्टर, तालीमी माहिरीन और वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने खिताब किया। वज़ीर तालीम ने असातिज़ा से मरदमशुमारी और इलेक्शन ड्यूटियाँ न लेने की तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि असातिज़ा की तंजीमों के सियासी असर रसूख पर भी तशवीश का इजहार है। इलेक्शन का सीज़न है वैसे, अब उसमें असातिज़ा जो अगर चले जाएंगे इलेक्शन की ड्यूटीज़ पे तो मुतासिर बच्चों की तालीम होगी। इसके लिए और से एम्प्लॉइज़ और कोई एम्प्लॉइज़ ले लें, हमारे उस असातिज़ा को माफ़ किया जाए। अब सेंसस के लिए हमारे पास और भी बहुत सी फोर्सेस बैठी हुई हैं, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास और भी ज़्यादा बहुत मौजूद है, उनको लिया जाए। वज़ीर तालीम ने तालीमी बोर्ड्स में इम्तहानात के फरसुदा निज़ाम पर भी सवालात खड़े कर दिए। इम्तिहान लेना वो काम है, एग्जामिनर कोई थर्ड पार्टी होती है, वो हमारे बोर्ड से। मैंने 2018 में स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें जो कुछ मेंबरान इधर मौजूद होंगे, हमने उस वक्त भी उस पर एम्फेसाइज़ किया था कि आप इसको मेहरबानी करके इसको चेंज करें, आपका ये जो सिस्टम है ये चलने वाला नहीं है। वहाँ से कापियाँ उठा के हमारे ही पढ़ाने वाले उस्ताद वही उसको असेस कर रहे होते हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान माहिरीन ने तजावीज़ दी हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के बच्चों को तारीख और तहजीब के साथ जोड़ा जाए। कैमरामैन साजिद अली उमरानी के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। सिंध के महकमा बराए माही मवेशी और माहीगीरी की सरकारी लग्जरी गाड़ी साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर दानिश सईद ले उड़े हैं। महकमे के जारी करदा नोटिस भी असर नहीं दिखा सके हैं। अफसर ने गाड़ी वापस करने से इनकार कर दिया। दानिश सईद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में तैनात हैं। उनके कब्जे में टोयोटा डबल कैबिन गाड़ी है। महकमा मवेशी और माहीगीरी ने दानिश सईद को नोटिस जारी किया, लेकिन उन्होंने सरकारी गाड़ी वापस न की। महकमा मवेशी और माहीगीरी ने महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से भी मदद हासिल करने की दरख्वास्त की है। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने मुआसत कर ली और वाज़ेह किया कि ये मामला महकमे का है, वो खुद हल कर सकता है। डॉलर की ऊंची उड़ान रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तलब पर हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपए 3 पैसे महंगा होकर 269 रुपए 63 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 6 रुपए महंगा होकर 275 की बुलंद सतह पर कायम हुआ। डॉलर का मार्केट के हिसाब से छोड़ने पर रुपया मुसलसल कमजोर होने लगा। हफ्ते के पहले ही रोज तलब पर डॉलर मजीद 7 रुपए 3 पैसे महंगा हो गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 262 रुपए 60 पैसे से बढ़कर नई बुलंद तरीन सतह 269 रुपए 63 पैसे पर बंद हुआ। 6 कारोबारी रोज में डॉलर 39 रुपए 96 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर तकरीबन 40 रुपए महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरून कर्जों में 4800 अरब रुपए का बोझ बढ़ चुका है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 6 रुपए महंगा होकर पहली बार 275 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आज का दिन भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कोई अच्छा नहीं रहा। हालांकि हमारा ख्याल ये था कि आज मार्केट शटल हो जाएगी और डॉलर मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। एक तो ऐसा लगता है कि जैसे जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं वो भी आज भी नहीं आई और इंटरबैंक तकरीबन 7 रुपए का इजाफा हुआ है, 7 से 8 रुपए का, और हमारी ओपन मार्केट में भी इतना इजाफा हुआ है। लेकिन हमारे पास अभी भी बेचने के लिए कैश डॉलर्स नहीं है। ओपन मार्केट में यूरो 9.5 रुपए महंगा होकर 296 रुपए और बरतानी पाउंड 13 रुपए महंगा होकर पहली बार 339 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में इमारती धर्म 2.5 रुपए महंगा 70 रुपए 50 पैसे और सऊदी रियाल 2.5 रुपए महंगा होकर 73 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। अशरफ खान, सिटी 21। और नाज़रीन, डॉलर महंगा होने से सोने की कीमत मज़ीद बढ़ गई। 1 तोला सोना 1500 रुपये महंगा होकर पहली बार 2,10,500 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $4 सस्ता होकर $1924 फी औंस तक गिर गया। साथ ही साथ दूसरी जानिब मकामी मार्केट में डॉलर महंगा होने की वजह से मुकामी सराफा मार्केट में सोना महंगा हो गया। और डॉलर की ऊंची उड़ान ज्वेलरी के कारोबार पर भी असर अंदाज होने लगी है। तफसील बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में।
डॉलर की लंबी छलांग, ताजिर परेशान, महंगाई का तूफान हर शोबे को मुतासिर करने लगा। पाकिस्तान ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अरशद कहते हैं फी तोला सोना 2 लाख रुपए से भी तजावुज कर गया। कारोबार 70% तक तबाह हो चुका। बुनियादी वजह आलमी सतह पर सोने की कीमतों में इजाफे के साथ मुकामी सतह पर रुपए की कदर में कमी है। हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर 271 रुपये का डॉलर हो गया, 271 रुपये का। पाकिस्तान के अंदर जो सोने की कीमतें हैं, सोने की कीमतें 2,12,000 रुपये से भी तजावुज़ कर गई हैं। मतलब क्या करेगी आवाम? आज तंदूर पे रोटी नहीं है, राशन शॉप पे राशन नहीं है, होटल के अंदर खाना नहीं है। ज्वेलर्स के मुताबिक महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि शहरी सोने के जेवरात की खरीदारी के बजाय आर्टिफिशियल ज्वेलरी को तरजीह देने पर मजबूर हो गए हैं। शादी ब्याह की ज्वेलरी भी जो मुतवस्सित तबका है, जो मिडिल क्लास कहते हैं, वो तो इस चीज़ से फारिग हो चुका है। हमारे गोल्ड की उससे तो ना वो अब आर्टिफिशियल में आता है, चांदी में आता है, तो सोने पे तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़वाल आ गया है। सदर के सराफा बाजार के ज्वेलर्स का हुकूमत से मुतालबा है कि डॉलर की कीमत पर फौरी तौर पर काबू पाया जाए ताकि कारोबार से मंदी के बादल खत्म हो सकें। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। गुलशन इकबाल के इमरान खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पिरिट फील्ड फुटबॉल क्लब एंड अकेडमी के इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमना निसार से। हमना आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 इमरान खान क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पे स्प्रिट फील्ड फुटबॉल एकेडमी एंड क्लब का इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया है। अभी हमारे साथ स्प्रिट फील्ड के को फाउंडर सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सलमान, बताइएगा कि क्या इस स्प्रिट फील्ड फुटबॉल एकेडमी के बनने का क्या मकसद है, क्या आप लोगों ने सोच के बनाया है? इसके काफ़ी सारे मकसद हैं और उनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट मकसद यही था कि बच्चे जो फुटबॉल से और स्पोर्ट्स से दूर होते जा रहे हैं उनको वापस से फुटबॉल में गेम में लाने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि वैसे ही पाकिस्तान के कराची के हालात इस तरह के चल रहे होते हैं कि पेरेंट्स भी जो हैं अपने अवॉइड करते हैं बच्चों को बाहर भेजने से, तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि सेफ़ एनवायरनमेंट के अंदर, अच्छे एटमॉस्फेयर के अंदर बच्चों को फ़ुटबॉल की एक्टिविटीज़ करवाएं। और दूसरी जो एक्टिविटीज़ में बच्चे लग जाते हैं, मोबाइल फ़ोन में वक्त ज़ाया करना, लैपटॉप में ये वो मूवी शूवी, तो इसमें बच्चों की इस तरह की एक फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए। और ये फ़ुटबॉल एक बहुत अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी है और एक अच्छा स्पोर्ट है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यहाँ क्रिकेट खेलने बच्चे आते हैं, क्या उसके अंदर आपने ऐसे बच्चों को देखा जिसके अंदर फुटबॉल खेलने का जज्बा हो, जिसकी वजह से आपने ये असल में मैं ख़ुद भी बचपन से क्रिकेट ही खेलता था। हम सब क्रिकेट खेलने वाले लोग ही हैं क्योंकि ज़्यादातर कराची में तो क्रिकेट ही है। और अब हमें शौक़ ही फ़ुटबॉल देख देख के, टीवी पे देख के, अपने बड़ों को देख के, तो उनको देख देख के हमें भी फ़ुटबॉल का शौक़ चढ़ गया है। और ये मज़े की बात ये है कि असल में ये है हमारा पैशन है अब फुटबॉल। और मैं ख़ुद डॉक्टर हूँ, अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए मेडिकल फील्ड कर लिए, हम भी खुश हो गए, डॉक्टर बन गए, तो अब अपने पैशन को टाइम देने के वक्त है, तो हमने अब अपने पैशन को देखा है फुटबॉल स्टार्ट करके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सलमान मौजूद हैं, को फाउंडर स्प्रिट फील्ड के। पाकिस्तान में क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल को भी पज़राई मिलनी चाहिए, जिसके लिए एक शानदार फील्ड का इफ्तिताह किया गया है। जी, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के सामने दस्तरख़्वाम बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सजाया गया। सवाले से मज़ीद जानेंगे नमरा रियासत से। बिल्कुल जी, शहर भर में ऐसे बेशुमार फलाही इदारे हैं जो आवाम की फलाह के लिए काम करते हैं। उनके लिए बेशुमार दस्तरखान सजाए जाते हैं जहां उनको खाना मैसर होता है। लेकिन इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं फातिमा ज़हरा दस्तरखान पर, ये सिर्फ दस्तरखान जो है महज ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया है, ख़वातीन और छोटे बच्चों के लिए। जहाँ ख़वातीन जो है वो पुरएतमाद तरीके से यहाँ बैठ के पुरसुकून तरीके से खाना खा सकती हैं, उन्हें कोई पर्दे का मसला नहीं है। चारों अतराफ पे जो है यहाँ पे वो लगाए गए हैं ताकि वो आराम सुकून से बैठ के यहाँ खाना खा सके। इस दस्तरखान की ऑनर जो जिनकी जानिब से इक़दाम किया गया है, सैयदा अनफास फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी अनफास साहिबा, बताइएगा कितने अरसे से आपने ये काम शुरू किया और ये ख्याल किस तरह से आया कि सिर्फ ख़वातीन के लिए आप काम करें? तकरीबन 5 मंथ हो गए इसको स्टार्ट किए हुए, और क्योंकि मैं स्ट्रीट पे ही काम ज़्यादा करती हूँ, फुटपाथ, स्कूल और इस तरह दूसरे, तो मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि जो सफ़ेद पोश हमारी फैमिलीज़ हैं, स्पेशली हमारी जो खातून है, हमारी जो माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, वो कहाँ जाए। तो फिर बस जमा में सोचा, अल्लाह ने हिम्मत दी, बिस्मिल्लाह की और शुरू कर दिया। और इस बात का ध्यान रखा गया कि 4 दीवारी होना बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी, सिक्योरिटी और हाइजीन को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है।
بہت شکریہ. بہت بہترین اقدام ان کی جانب سے کیا گیا ہے کہ خواتین کو کھانا دیا جائے اور ساتھ ساتھ صحت کے جو مسائل ہیں ان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ کھانے سے پہلے ان کے ہاتھ دھلوائے جاتے ہیں. ان کو ایک پلاسٹک بیگز دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے شوز پر پہن لیں, پیروں میں وہ پہن لیں اور اندر آئیں اور سکون سے بیٹھ کے یہاں کھانا کھا سکیں. جی. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا.